السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، کل ہم طہارت کے کچھ مسائل پڑھ رہے تھے، اور کلاس کے بالکل اخیر میں فون کے سوئچ آف ہو جانے کی وجہ سے کچھ باتیں اخیر کی جو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا تھا وہ باقی رہ گئی تھیں۔ البتہ جو درس تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا تھا۔ ایک مسئلہ کل کے مسائل کے اندر یہ ہمیں جوڑنا تھا کہ پانی نجس ہے، ٹھیک ہے، پانی نجس ہے، پانی گندا ہے، تو لہٰذا ہم اسے وضو کے لیے، غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اس گندے پانی کو، اس نجس پانی کو پیوریفائی کرنے کا یا اسے آ، اچھا کرنے کا جو پروسیس ہے، جیسا کہ کیمیکلز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو کیا ہم ویسا پانی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں وضو کے لیے، غسل کے لیے؟ تو جب یہ مسئلہ علماء کے سامنے آیا تو جو فقہی ادارے ہیں جہاں پر عمومی طور پر، عام طور پر جنرلی فتاوے جو ہے جاری کیے جاتے ہیں، نئے مسئلوں کو پڑھا جاتا ہے، ان کے تعلق سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں، پھر کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے تعلق سے کوئی فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے جو فتویٰ مجھے ملا، جو مکۃ المکرمہ کی فقہ اکیڈمی جو ہے، وہاں سے جو فتویٰ جاری ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اگر بات حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ پانی جو نجس تھا، پانی جو گندا تھا، نجس تھا، اگر اسے پیور کرنے کا پروسیس کسی نے کیا اور وہ پانی دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا، اور وہ پانی دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا، اور اب اس کے اندر کوئی بدبو پائی نہیں جاتی، اس کا مزہ بھی بالکل برابر ہے، اس کا کلر بھی بالکل برابر ہے، تو ایسی صورت میں اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا فتویٰ علماء کرام نے دیا۔ البتہ یہی بات کہی گئی کہ اگر آپ کے پاس دوسرا پانی موجود ہے تو پھر آپ اسے ہی استعمال کیجئے، اس سے اجتناب کیجئے، اس سے پرہیز کریے، احتیاط کیجئے، اس سے دور رہیے۔ لیکن اگر بات ایسی ہے کہ یہی پانی جو ہے میسر ہے، یہی پانی اب ہے، اور اسی پانی کو ہمیں استعمال کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ اس سلسلے میں بہت بڑے بڑے پلانٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پر جو پانی نجس ہوتا ہے، گندا جو پانی ہوتا ہے، اسے جو ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پورا ان کے پاس اپنا ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے چلتے، ہاں، پانی جب اس پروسیس سے پورا گزارا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جتنی گندگیاں تھیں وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ پانی جو ہے بالکل پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ ایسا پانی وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی اصل ہیئت پر یا اپنی اصل کیفیت پر، اس کی جو بیسک کوالٹیز تھی پانی کی، وہ واپس آ چکی ہیں اور وہ اپنی اصل حالت میں ہیں۔
तो फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि उसके अंदर कोई बदबू ना हो। हाँ। और उसका मज़ाक बदला हुआ ना हो, और इसी तरह उसका कलर बदला हुआ नहीं है, तो फिर वो पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता पीने के ताल्लुक से तो यही बात कही गई कि हरगिज़ जो है वो पानी इस्तेमाल ना करें। जो अ, फतवा जो जारी किया गया था, तो उसके अंदर इस्तेमाल के ताल्लुक से इजाज़त दी गई थी कि इस्तेमाल किया जा सकता है। और अलबत्ता पीने के ताल्लुक से बताया गया कि उससे जो है परहेज़ करना ये ज़्यादा मुनासिब होगा, यह ज़्यादा एहतियात वाला काम होगा। तो ये आज के मसाइल के अंदर ये बात जो है बयान की जाती है कि अगर पानी ऐसा है जो प्यूरिफाई किया जा रहा है, जो पहले नजिस था, प्यूरिफाई हो गया, तो अब क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं, जब देख लें कि वाकई मानों में वो साफ हो गया है, अच्छा हो गया है, कोई बदबू नहीं आ रही है, उसका टेस्ट भी बदला हुआ नहीं है, कलर भी बदला हुआ नहीं है, अब अच्छा हो गया है वो, तो फिर जो है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दूसरा पानी आपके पास मौजूद है तो वही इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन नहीं, यही पानी मौजूद है, इसी को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर इसके ताल्लुक से उलमा ने गुंजाइश दी है कि हाँ, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पीने के ताल्लुक से एहतियात बरतना चाहिए। ठीक है, ये एक मसला जो बाकी रह गया था कल का, वो ज़रूरी था कि आपको बयान कर दिया जाए। उसके बाद आज हम इंशाअल्लाह ताला जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा चैप्टर है इस किताब का, अल फ़िक़्हुल मयस्सर का। किताब तहारा के अंदर जो दूसरा चैप्टर है, जिसका टॉपिक है आनिया, यानी बर्तन, पानी के बर्तन, उसके ताल्लुक से ये चैप्टर है। और इसके अंदर चार अलग अलग मसाइल को बयान किया गया है किताब व सुन्नत की रोशनी में। पानी के ताल्लुक से जब कहा गया कि पानी नजिस है या फिर पाक है, ये देखना है, और उसके बाद वजू करना है, उसके बाद उसे गुस्ल करने के लिए इस्तेमाल करना है। पानी का पाक होना पाकी हासिल करने के लिए ज़रूरी है, वाजिब है। अगर पानी नजिस है तो आप उससे वजू और गुस्ल नहीं कर सकते, उससे वजू और गुस्ल नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास पानी जो मौजूद है और वो नजिस है, ठीक है, बस यही एक पानी है, तो फिर आप तयम्मुम कर लेंगे। ठीक है, तो आप तयम्मुम कर लेंगे, गोया कि पानी है ही नहीं, इस्तेमाल के जो काबिल ही नहीं, उसी के अंदर उसका हुक्म होगा। यानी मिसाल के तौर पर एक मरीज है, बीमार है, पानी मौजूद है, लेकिन वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो पानी इस्तेमाल करेगा तो फिर उसे नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो इजाज़त दी गई है कि तयम्मुम कर सकते हैं, तो यही मामला यहाँ पर भी होगा कि पानी तो मौजूद है लेकिन वो नजिस पानी है, गंदा पानी है, आप वजू के लिए, गुस्ल के लिए उससे इस्तेमाल नहीं कर सकते तहारत हासिल करने के लिए। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? गुस्ल गुस्ल करना है, वजू करना है, तो फिर तयम्मुम कर लिया जाएगा। ये जो चैप्टर है अल आनिया, बर्तनों के बारे में ये चैप्टर है। पानी जो हम पाक पानी जो हम ले रहे हैं, वो किसी न किसी हम बर्तन में ही लेंगे, किसी न किसी हम जो है बर्तन में लेंगे। तो बर्तनों के ताल्लुक से, जिस पानी को आप बर्तन में ले रहे हैं, उस बर्तन के ताल्लुक से, उस चीज़ के ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है? क्या सारे जो बर्तन हैं वो जायज़ हैं? अलग अलग तरीक़े के बर्तन होते हैं। हाँ, कुछ जो है चमड़े के बर्तन हैं, चमड़े के जो है चीज़ें हैं जिसके अंदर पानी जो है रखा जाता है। जैसा कि आमतौर पर जो है पुराने ज़माने में जिस तरह जो है आमतौर पर हुआ करता था, अगर मसला वैसा है, या फिर जो है बाज़ लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पास पैसा इतना होता है कि वो सोने और चांदी के बर्तन भी अपने पास रखते हैं। तो क्या सोने और चांदी के बर्तन ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, वज़ू के लिए या फिर इस्तेमाल के लिए? और इसी तरह और भी जो मुख्तलिफ बर्तन हैं, मिसाल के तौर पर ऐसे बर्तन हैं जो जो कि गैर मुस्लिमीन के हैं। बर्तन तो एक मानो में स्टील का बर्तन ले लीजिए आप, वो बर्तन तो स्टील का है, या बकेट जो है वो प्लास्टिक की है, लेकिन वो है किसी गैर मुस्लिम की। तो क्या किसी गैर मुस्लिम का वो बर्तन आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? वही मसाइल आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे।
الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيه الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة آیت نمبر 29۔ جتنے بھی برتن ہیں ان کے تعلق سے اصل حکم ایک اصل حکم جو بیسک حکم ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہیں۔ جتنے بھی برتن یا جتنی بھی چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں وہ جائز ہیں ان کا استعمال کرنا، الا یہ کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ قاعدہ آپ لوگ تھوڑا سا یہاں پر سمجھیے کہ عبادات کے اندر قاعدہ الگ ہے، رول الگ ہے، معاملات کے اندر رول الگ ہے۔ عبادات کے اندر رول یہ ہے کہ جو عبادت کتاب و سنت سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، وہی عبادت کرنا مشروع ہے، جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو عبادت قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، یا قرآن مجید سے وہ ثابت ہوتی ہے، یا حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے، وہ عبادت مشروع ہے، وہ عبادت جائز ہے، وہ عبادت ویلڈ ہے، ہم جو ہے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ معاملات کے اندر رول یہ ہے کہ سارے معاملات جو ہے جائز ہیں، وہ معاملہ جائز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت کے اندر کیا ہے؟ جو کتاب و سنت کے اندر ہے وہ عبادت ہمیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی عبادت ہم الگ سے نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی عبادت اپنی طور پر ایجاد کر لیں اور اسے کرنے لگ جائیں، نہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ اس کے تعلق سے دیکھا جائے گا کیا یہ قرآن مجید کے اندر سے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، کیا قرآن مجید سے یہ ثابت ہے، یا حدیث نبویہ سے کیا یہ ثابت ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا، اگر موجود ہے، اس کا ذکر ملتا ہے، تو پھر اس پر حکم لگایا جائے گا کہ وہ عبادت جائز ہے۔ لیکن اگر ہمیں قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے تعلق سے ہم حکم لگائیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عبادت منمانی نہیں ہو سکتی، جو کتاب و سنت کے اندر آیا ہے وہی عبادت ہوگی۔ یہ رول عبادتوں کے تعلق سے ہے۔ البتہ البتہ معاملات کے تعلق سے عبادتوں سے ہٹ کر جتنے بھی معاملات ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، ہاں، اسی طرح جو ہے کوئی چیز بھاڑے پر دینا ہے، اجارے پر دینا ہے، رینٹ پر دینا ہو، اسی طرح نکاح کے تعلق سے، فلاں کے تعلق سے، جو دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ جو معاملات اسلامی شریعت سے منع کیے گئے ہیں وہ منع ہے، اس کے علاوہ سب جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو حرام چیزیں ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، اس کا بیان کتاب و سنت کے اندر آ گیا ہے، اس کے علاوہ سارے معاملات جائز ہیں۔ تو آنیہ برتن کے تعلق سے حکم جو اصل وہ یہ ہے کہ اباحہ جائز ہے، سارے برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں، قسم قسم کے برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہوں، چاہے وہ کسی اور جو ہے دھات سے بنے ہوئے ہوں، چاہے وہ کپڑے کے ہوں، چاہے وہ چمڑے کے ہوں، چاہے وہ کسی اور چیز کے ہوں، وہ برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں، سوائے وہ برتن ہے، باقی سارے برتن گویا کہ آپ کے لیے جائز ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل جو دی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، انسان آپ نے سمجھ لیا، یہ رول آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ عبادتوں کے اندر رول یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہی عبادت کر سکتے ہو، اس سے ہٹ کر نہیں۔ معاملات کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر رول یہ ہے کہ جس سے روکا گیا ہے وہ نہیں کرنا ہے، باقی سب آپ گویا کہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ رول سمجھ میں آ گیا؟
ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, आप लोगों के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। इबादतों के लिए मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी इबादत कर रहा है, एक नई इबादत कर रहा है, मिलादुन नबी मना रहा है, तो अगर हम उसको उससे क्या पूछा जाएगा, उससे ये पूछा जाएगा इसकी दलील कहाँ है, जो आप कर रहे हैं इसकी दलील कहाँ है। जब ये कह रहे हैं ये काम करना नेकी है, फजीलत है, तो उससे दलील ली जाएगी, पूछा जाएगा कि कुरान और हदीस के अंदर इसका जिक्र कहाँ है, बताइए। कुरान और हदीस के अंदर इसको जायज कहाँ करार दिया गया, वो बताइए। वो आदमी ये नहीं कह सकता कि मना कहाँ किया गया है, वो बताइए। नहीं करना बोलकर कहाँ है, आप लोग बताइए। वो ये नहीं कह सकता, इसलिए कि जब आप एक चीज को इबादत कहकर, नेकी कहकर अगर आप कर रहे हैं, तो उसका जिक्र किताब और सुन्नत के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो चीज आप नहीं कर सकते, वो चीज नेकी ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो जो मिलाद नबी मना रहा है उसे दलील देनी चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, वो क्यों ना करें, उसकी दलील मांगते हैं। दलील क्या मांगते हो? नहीं करने की दलील बताइए, हम क्यों ना करें। इन नादानों को ये मालूम नहीं कि इबादत के अंदर जो रूल है वो ये है कि जो किताब और सुन्नत से साबित है वही करना है, उससे हटकर नहीं। ये मामलात वाला मामला नहीं है कि इंसान सारी चीज़ें जायज़ हैं, हाँ वही हराम है जो किताब और सुन्नत में आया है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी कोई बर्तन इस्तेमाल कर रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, एक बर्तन है जिस पर एक मानो में कुछ ऐसे कीमती पत्थर लगे हुए हैं जो उस बर्तन को बहुत कीमती बना रहे हैं। तो आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि ये बर्तन इस्तेमाल करने के लिए कुरान और हदीस से दलील दो, बल्कि इसके इस्तेमाल ना करने के लिए कुरान और हदीस से दलील देना पड़ेगा। इबादतों के लिए उल्टा है। इबादत के अंदर क्यों करना है इबादत, उसका जिक्र क्या कुरान और हदीस में है, वो हम मालूम करेंगे। और मामलात के ताल्लुक से ये है कि नहीं करना अगर कुरान और हदीस के अंदर है तो बयान करना पड़ेगा। ठीक है। तो अल असलु फिल अनियति अलिबाहा, तो बर्तनों के ताल्लुक से असल जो हुक्म है वो यही है कि वो जायज़ है इस्तेमाल करना, मगर वो जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया है कि उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये पहला हुक्म यहाँ पर मुकदमे के तौर पर, प्रीफेस के तौर पर आपको बता दिया गया। उसके बाद चार अलग अलग मसाइल बयान किए जा रहे हैं। पहला मसला, इस्तेमाल आनियत ज़हबी वल फिद्दती वगैरिहिमा फी तहारा, सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना तहारत के लिए, वजू के लिए, गुस्ल के लिए। तो उसके ताल्लुक से ये बात बताई जा रही है कि खाने पीने के अंदर और इसी तरह दीगर तमाम इस्तेमाल के अंदर सारे बर्तन हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो पाक हैं। जब वो पाक हैं उनका इस्तेमाल करना जायज़ है। हाँ, हाँ अलबत्ता सिवाय सोने और चांदी के, इसलिए कि उनका इस्तेमाल करना शरीयत ने हराम करार दिया है। शरीयत ने उनका इस्तेमाल करना हराम करार दिया है, उनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। यहाँ पर जो हदीस दलील के तौर पर पेश की गई है वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तशरबू फी आनियत الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة। देखो, सोने और चांदी के बर्तनों में ना पियो ना खाओ। सोने और चांदी के बर्तनों में ना खाओ और ना पियो। प्लेटें भी सोने की इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं खाने और खाने के लिए। फ़इन्नहा लहुम फी दुनिया, इसलिए कि ये गैर मुस्लिमों के लिए दुनिया के अंदर है और आखिरत में मुसलमानों के लिए है। आखिरत में जन्नत के अंदर जो बर्तन होंगे वो वहाँ पर सोने और चांदी के होंगे, तो वहाँ पर मुसलमानों को
दिया जाएगा, जबकि वो यहाँ पर इस हुक्म पर अमल करें कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पीना उनके लिए जायज़ नहीं है। जन्नत के अंदर तो माशाल्लाह से बाखला तौर पर एक महल ही पूरा सोने का होगा जिसके अंदर की हर चीज़ सोने की होगी, एक महल जो है चांदी का होगा जिसकी हर चीज़ जो है चांदी की होगी। तो वहाँ पर ये इस्तेमाल उन लोगों के लिए जायज़ हो जाएगा, मुसलमानों के लिए। लेकिन दुनिया के अंदर इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। और एक और हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई और कहा, अल्लज़ी यशरबु फी आनियतिल फिद्दती इन्नमा युजरजिरु फी बत्निही नार जहन्नम। जो शख्स जो शख्स चांदी के बर्तन में पीता है, चांदी के प्याले में जो पीता है, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहा है। वो तो पानी पी रहा है या कोई और मशरूब पी रहा है, लेकिन हकीकत में वो जहन्नम की आग अपने पेट में डाल रहा है, इसलिए कि ये चीजें इस्तेमाल करना खाने और पीने के लिए ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसी को सामने रखकर बाज़ उलमा ने ये कहा है, जब खाने पीने के लिए ये जायज़ नहीं है, जबकि जनरल इस्तेमाल बर्तनों का यही है, तो फिर शो पीसेस के तौर पर ये चीज़ें रखना ये ये भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, मतलब इस्तेमाल में तो नहीं है, लेकिन एज अ शो पीस वो सिर्फ रखे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी जायज़ नहीं है, ये भी जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। तो ये पहला मसला था जो यहाँ पर जो है बयान किया जा रहा है कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना और पीना जायज़ नहीं है मुसलमानों के लिए, तो लिहाजा इसमें खाना और पीना नहीं चाहिए। सोने के प्लेटें हों, चांदी के प्लेटें हों, हाँ बाद लोग जो है सिल्वर स्पून इस्तेमाल करते वगैरह, चाहे वो कितने भी मालदार क्यों ना हो, ये बर्तन इस्तेमाल करना खाने और पीने के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अब यहाँ पर एक मसला है कि वो बर्तन जिस पर एक मानो में उसका पानी चढ़ाया जा रहा हो, हाँ सोने का पानी बस चढ़ाया जा रहा है, चांदी का पानी बस जो है चढ़ाया जा रहा है, वो असल सोने और चांदी का नहीं है, वो असल सोने और चांदी का नहीं है। तो सिर्फ अगर कलर का अगर ऐसा मसला है तो उसके ताल्लुक से ये बात बताई गई है कि उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बिल्कुल सोने का है उससे मना है। हाँ वो है, दीगर जो मिसाल पर स्टील का है, लोहे का वगैरह है, अलबत्ता ऊपर बस जो है सोने का पानी उसे चलाया गया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल करना जायज़ होगा। हाँ जो खालिस सोना है, जो खालिस चांदी का बर्तन है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ जो असल में लोहे का बर्तन है उस पर सिर्फ जो है ये एक मानो में तिलाई का काम जो है सोने का उसके ऊपर हुआ है, तो उसके ताल्लुक से बताया गया कि हाँ वो जायज़ है। तो यही मामला कलर का भी है। बाज़ दफ़ा जो है ऐसे ग्लासेस रहते हैं जो बिल्कुल जो है असल में तो रहते वो दीगर जो है धातों के, लेकिन उस पर जो है सोने का कलर जो है चढ़ाया जाता है या सिल्वर कलर उसके ऊपर जो है किया जाता है। हाँ तो देखने में बिल्कुल सोने और चांदी के वो दिखेंगे, लेकिन वो हकीकत में वो नहीं है, तो उनका इस्तेमाल जो है जायज़ है, उनका इस्तेमाल हराम नहीं है। खालिद जो सोने और चांदी के हैं उनका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। ठीक है, ये एक पहला मसला है। दूसरा मसला यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बाज़ बर्तन ऐसे होते हैं जो खालिस सोने और चांदी के तो नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ हिस्सा सोने का होता है, कुछ हिस्सा चांदी का होता है, तो क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? वो बर्तन मुकम्मल सोने का नहीं है, मुकम्मल चांदी का नहीं है, वो असल है लोहे का, लेकिन कहीं पर किसी जगह मिसाल के तौर पर उसके ऊपर अलग से जो है कोई चीज़ सोने की लगाई गई हो या चांदी की लगाई गई हो, तो ऐसे में क्या हुक्म है? तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अगर मामला ऐसा है कि बर्तन को जोड़ने के लिए उस बर्तन को जोड़ने के लिए अगर चांदी का तार इस्तेमाल किया गया है, बर्तन टूट गया था, उसे जोड़ने के लिए चांदी का तार
सोने का नहीं, चांदी का तार अगर इस्तेमाल किया गया है तो फिर उसका इस्तेमाल जायज़ होगा उतनी हद तक, अलबत्ता सोने की कोई चीज़ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि नबी, उसके लिए दलील दी गई। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि इनकसरा क़दहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्तखज़ मकान अश्शअबि सिलसिलतम मिन फिद्दा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो प्याला था वो टूट गया, तो फिर उस प्याले को जब जोड़ा गया तो वहां पर चांदी की एक तार के साथ उसे जो है गोया के जोड़ दिया गया। चांदी की एक तार के साथ उसे जोड़ दिया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस्तेमाल किया करते थे। तो अगर बिल्कुल वो चीज थोड़ी है चांदी की, हाँ सोने की तो हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अलबत्ता चांदी की चीज है और बिल्कुल वो बस छोटा एक तार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बर्तन को जो है जोड़े रखें, तो ऐसी सूरत में उनका इस्तेमाल करना जायज होगा, उनका इस्तेमाल करना दुरुस्त होगा। लेकिन बस वो तार जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है वही चांदी का है, बाकी कुछ नहीं। तो इसकी जो है इजाज़त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बर्तन ऐसे ही टूट गया था, तो उसके ताल्लुक से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसे जोड़ दिया गया, उसे जोड़ दिया गया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद ये दूसरा मसला था कि अगर बर्तन सोने का नहीं है, चांदी का नहीं है, हाँ अलबत्ता उसके अंदर सोने की कुछ चीज है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। चांदी की कुछ चीज है और वो एक मानो में ज्यादा मकदार में है, बड़ी मकदार में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस उस बर्तन को जोड़ने के लिए चांदी का अगर तार इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर गुंजाइश बताई गई है कि हाँ उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना नहीं। अब यहाँ पर तीसरा मसला जो बयान किया जा रहा है वो है गैर मुस्लिमीन के बर्तन। जो गैर मुस्लिम हैं क्या हम उनके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो खाने पीने के लिए हो, चाहे वो वुज़ू करने के लिए हो, पानी इस्तेमाल करने के लिए हो। तो इसके ताल्लुक से जो हुक्म है, असल हुक्म वो ये बताया जा रहा है, अल अस्लु फी आनियतिल कुफ्फारी अल हिल इल्ला इज़ा उलिमत नजासतुहा फ़इन्नहु ला यजूज़ु इस्तेमालुहा इल्ला बअद गस्लिहा। असल तो यही है कि गैर मुस्लिमीन के बर्तन भी पाक और साफ है, उनका इस्तेमाल करना गोया कि जायज़ है, गैर मुस्लिमीन के बर्तन का इस्तेमाल भी जायज़ है, दुरुस्त है। हाँ अलबत्ता अगर हमें ये मालूम हो कि वहाँ पर नजासत का इम्कान है, वो नजिस चीज़ों में इस्तेमाल हुए होंगे, अगर ये इम्कान है तो फिर हम उसे धोकर ही इस्तेमाल करेंगे, हम उसे धोकर ही इस्तेमाल करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, इन्ना बि अर्दि कौमी अहली किताब अफनअकुलु फी आनियतिहिम। हम गैर मुस्लिमों के साथ रहते हैं जो कि क्रिश्चियंस है और ईसाई है, ईसाई है वहाँ पर, क्रिश्चियन और जो है यहूदी मौजूद हैं, हम इनके साथ रहते हैं, तो क्या इनके बर्तन में हम खाएं और पिएं, इनके बर्तन में खाना पीना क्या जायज़ होगा? तो फरमाया गया, ला तअकुलू फीहा इल्ला अल्ला तजिदू गैरहा फगसिलूहा थुम्मा कुलू फीहा। होना तो ये चाहिए कि उन बर्तनों को आप लोग इस्तेमाल ना करो, हाँ मगर बात ऐसी है कि उनके बर्तन इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जा रहा है, तो फिर आप जो है उसे धो लो और फिर उसे आप इस्तेमाल करो, उसे आप धो लो और फिर उसके इसे इस्तेमाल करो, तो मकलूफी है, फिर उसके बाद आप उसके अंदर से उससे जो है खा सकते हैं, उसे इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर बात ऐसी है कि वो जो बर्तन है वो हमेशा नजिस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बर्तन हमेशा नजिस चीज़ों के लिए ही गोया के इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर नजिस चीज़ें के जैसे शराब है, तो वो जो प्याला है उन लोगों के पास वो हमेशा शराब के लिए ही गोया कि वो इस्तेमाल आम तौर पर जो है होता है। ठीक है।
आमतौर पर उसी के लिए होता है। तो ऐसी सूरत में आप उसे जो है धो कर ही इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरी है वहाँ पर धोना, धोए बगैर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता ऐसे बर्तन हैं जिसके अंदर नजिस चीज़ का कोई शायबा नहीं है, तो फिर उनके बर्तन आप इस्तेमाल कर ले सकते हैं, अगर धो लें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम सफ़र पर थे। सफ़र के दौरान पानी ख़त्म हो गया था। एक औरत को देखा, एक खातून को देखा जो पानी मुशकीज़ों में भर कर जो है ले जा रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पानी का एक बर्तन लिया, और एक बर्तन में पानी उससे लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्तेमाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्तेमाल किया। मालूम हुआ और वो गैर मुस्लिम थी, वो मुसलमान नहीं थी, तो लिहाजा गैर मुस्लिमीन के बर्तन इस्तेमाल किया किए जा सकते हैं। अगर नजासत का डर हो, नजासत जैसे मैंने मिसाल दी, हाँ उनमें शराब वगैरह इस्तेमाल होता हो, या बाद ऐसे जो है गैर मुस्लिम हैं जो सूअर खाते हैं, या बिल्कुल उनके वो लोग जो जिस अंदाज से जो जानवर खाते हैं वो गैर शरई तौर पर हाँ ज़बा होते हैं, तो एक मानों में वो नजिस ही होते हैं। तो लिहाजा उन्हें धो लिया जाए और उसके बाद ही उन्हें इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ऐसा है कि उसके अंदर गंदगी का कोई शायबा नहीं है, हाँ, तो मिसाल के तौर पर वो गिलास पानी का ही है, तो हाँ बिल्कुल आप जो है उस पानी उस गिलास को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो मसला यहाँ पर अब बयान किया जा रहा है वो ये है कि वो बर्तन जो कि चमड़े के हैं, चमड़े के बर्तनों का क्या हुक्म है, चमड़े के बर्तनों का क्या हुक्म है। तो उसके लिए बास चमड़े अलग अलग किस्म के होते हैं। देखिए, एक तो चमड़े वो हैं जो मकूलुल लहम के चमड़े हैं, जिन्हें सही तौर पर ज़बाह किया गया है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है इनके। एक मानो में मैं समझता हूँ चार अलग अलग कैटेगरी है, आप लोग थोड़ा सा तवज्जो यहाँ पर दीजिए। पहली किस्म जो है उन जानवरों की है जिन्हें खाया जाता है। हाँ, जैसे बकरी है, इसी तरह जो है बड़े का गोश्त है, इसी तरह जो है वो जानवर यानी बैल वगैरह है, इसी तरह जो है ऊंट है, ठीक है, भेड़ है। तो यकीनी तौर पर इससे जो है हम इन जिन जानवरों के हम गोश्त खाते हैं तो उनका जो चमड़ा है वो पाक है, जबकि वो सही तौर पर ज़बा हुए हों, जबकि वो सही तौर पर ज़बा हुए हों, तो फिर वो पाक हैं, तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़, ठीक है, वो जानवर जिनका गोश्त खाना जायज़ है इस्लाम के अंदर, और उन्हें सही तरीके से ज़बाह भी किया गया है, तो उनका जो चमड़ा है वो आप जायज़ है इस्तेमाल करना। तो आप उसे एक मानो में टैनरी में देने से पहले भी आप उसे इस्तेमाल कर ले सकते हैं, टैनरी के बाद भी जो है यानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो दबागत का जो प्रोसेस है चमड़े साफ करने का, उसके बाद भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जानवर जिनका गोश्त खाना जायज़ है और जो हलाल तरीके से ज़बा हुए हैं, पहला। दूसरे वो जानवर जो जायज है जिनका गोश्त खाना, लेकिन जो जबा हुए हैं, जबा जो हुए हैं गैर शरई तौर पर हुए हैं, गैर शरई तौर पर वो जबा हुए हैं। हाँ, एक झटके के जो जानवर होते हैं वो, या फिर जो है वो मर गए हैं। हाँ, मैता यानी वो जानवर जो है जो जिसका गोश्त खाना जायज था वो मर गया है, तो ऐसी सूरत में आप उसका चमड़ा उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब दबागत दे दी जाए, जब उसे अच्छी तरह से साफ कर लिया जाए। चमड़ों को साफ करने का जो प्रोसेस होता है बाकायदा, जो टैनरी के अंदर पूरा मुकम्मल प्रोसेस होता है केमिकल्स के ज़रिए वगैरह वगैरह, पुराने ज़माने में अलग अलग जो है अंदाज से उसे साफ किया जाता था। तो आज भी जिस अंदाज से उसे साफ किया जाता है केमिकल्स वगैरह से, जब वो पूरी तरीके से उसे दबागत दे दिया जा रहा है, तो उसके बाद ही आप वो चमड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, इसलिए कि वो नजिस है। ठीक है, एक वो जानवर मिसाल बकरी ही है लेकिन गैर शरई तौर पर ज़बा हुई है, मिसाल के तौर पर
غیر مسلم نے ذبح کیا ہے، ہاں اہل کتاب نہیں، کرسچنس یا جوس نہیں، غیر مسلم نے کسی نے اسے ذبح کیا ہے تو ہم وہ کہیں گے مسلمانوں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر شرعی طور پر اس کا ذبح ہوا ہے، شریعت کے مطابق اسے ذبح نہیں کیا گیا ہے تو اس کا گوشت بھی نجس ہے، وہ نہیں کھا سکتے آپ، اسی طرح اس کا چمڑا بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو گوشت تو ہر حال میں آپ کھا ہی نہیں سکتے، البتہ چمڑا کیا اسے پراپر صاف کر لینے کے بعد کیا اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے تعلق سے احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ ہاں دباغت، دباغت جو لفظ ہے یہ چمڑے صاف کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دباغت کے بعد آپ اس چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو دیکھا جو مر گئی تھی تو بالکل اب وہ اس کا گوشت کھانا یا اس کی ہر چیز جو ہے نجس ہو گئی، استعمال نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چمڑا تو کم سے کم استعمال کر لینا تھا، اس کا چمڑا کم سے کم استعمال کر لینا تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر گئی ہے، گویا کہ یہ تو نجس ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما ایہاب دبغ فقط طہر، اگر آپ اسے پراپر صاف کر لیں اس چمڑے کو تو پھر استعمال کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، ہاں اگر جو ہے پراپر طریقے سے اس بکری کو ذبح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے اعتبار سے، تو اس کے چمڑے کو آپ دباغت دینے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بعد میں تو استعمال کر ہی سکتے ہیں، لیکن غیر شرعی طور پر ذبح ہوئی ہے یا پھر وہ میتہ ہے، مر گئی تھی بکری، تو اس کے لیے ضروری ہے دباغت دیے جانا، اس کے بعد ہی آپ اس کا چمڑا آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو پوائنٹ ہو گئے، یہ دو قسم ہو گئی، تیسری قسم وہ ہے جو جلود السباع ہے، جلود السباع وہ چمڑے جو کہ درندوں کے ہیں، شیر کے ہیں، ہاں اسی طرح جو ہے چیتے کے ہیں، شیر کے چمڑے ہیں، چیتے کے یعنی جو درندے ہیں جنہیں ہم جو ہے السباع کہتے ہیں، ان کا جو چمڑا ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ان کا استعمال کرنا حرام ہے، چاہے اسے کیمیکلز کے ذریعے سے اچھی طرح صاف کیوں نہ کر لیا جائے، ان کا استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس کے لیے جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درندے ہیں ان کے چمڑے استعمال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ اسے فرش کے طور پر، بچھانے کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، کسی اور اعتبار سے بھی آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن جلود السباع ان تفترش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑوں کے تعلق سے ہمیں منع کر دیا کہ انہیں جو ہے ہم بچھائیں، یعنی ان کے استعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد کی ہے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درندوں کے لباس کو پہننا اور اسی طرح استعمال کرنا، بچھانا، اس پر بیٹھنا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، تو اگر آپ اسے دباغت بھی دے دیں، پراپر جو پروسیس ہے چمڑے کے صاف کرنے کا اسے بھی آپ کر لیں، تب بھی ان درندوں کے چمڑوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور بتایا گیا اس کی علت جو بتائی گئی، ریزن جو بتایا گیا کہ ایسا اہل تکبر کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو چوتھا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جانور ہیں ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جن کا گوشت کھانا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہاں تو کیا ان کا چمڑا ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان کا چمڑا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں
उलमा ने कहा है, और ख़ास तौर से जो किबार उलमा हैं, वो इसकी तरफ गए हैं कि उनका चमड़ा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के अंदर एहतियात है, इसी के अंदर एहतियात है। एहतियात वाला मसला यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि बाज़ उलमा ने ये कहा है कि उनका इस्तेमाल जायज़ हो जाएगा अगर हम उन्हें प्रॉपरली उस चमड़े को साफ़ करें। जो उसका प्रोसेस है चमड़े को साफ़ करने का, पूरा साफ़ करें, तो उन चमड़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह जो है बेल्ट के तौर पर वो इस्तेमाल होते हैं, जूतों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, हाँ जैकेट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। तो बाद उन्होंने कहा है कि अगर प्रोसेस आप सही तरीके से फॉलो कर लिए और चमड़ों को अच्छी तरह से साफ कर लिया गया, तो फिर उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ उलमा का कहना है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने उससे भी मना किया है कि एहतियात का तकाजा ये है कि वो भी नजिस है, तो लिहाजा हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो एहतियात वाला मसला है, एहतियात से मतलब ये है कि ना इस्तेमाल करना बेहतर है। पता नहीं, इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो गुनहगार हो सकते हैं, तो इसलिए दूर रहें, एहतियात बरतें, ये बेहतर है। ठीक है। पहला मसला हमने बताया, वो जानवर जिनका हम गोश्त खाते हैं और प्रॉपर तरीके से उन्हें ज़बह किया गया है, तो उनका जो चमड़ा है, आप चमड़े को साफ करने के प्रोसेस से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। वो जानवर जिनका हम गोश्त खा सकते हैं, जिनका हम गोश्त हमारा खाना हमारे लिए हलाल है, लेकिन ज़बह सही तरीके से नहीं हुआ या फिर वो मर गए हैं, तो क्या उनका चमड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है? तो चमड़े को साफ करने का जो प्रोसेस है, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप उस जिल्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके जो चमड़े के जो राइज हैं, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नीचे बिछा कर बैठने के लिए हो, या फिर जो है बैग उससे बनाए जो है उसके लिए कोई चीज़ रखने की रखने का बैग बनाया जा रहा है या कुछ भी बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा जो मसला बताया गया कि वो दरिंदे, जैसे शेर है, चीता है, वो दरिंदे उनका जो चमड़ा है, वो आप चमड़ा सही तरीके से साफ भी कर लेने के बावजूद उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अहले तकब्बुर इस तरह करते हैं, तो उन्हें उन पर ना बैठना चाहिए, ना उन्हें ना उनके लिबास बनाना चाहिए। लोग आमतौर पर जो है फ़ख्र से कहते हैं कि ये जो है फलां उसका जो है चमड़ा है, ये फलां उसका चमड़ा है। वैसे तो आमतौर पर जो है ये चीज़ें कुछ कानूनी तौर पर भी जायज़ नहीं है, लेकिन जो जायज़ चीज़ें आ रही हैं वो भी एक मानों में जो है दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है। ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये बताई गई कि जिनका हम गोश्त नहीं खाते, जिनका हम गोश्त नहीं खाते, उसके ताल्लुक से उलमा ने कहा है कि एहतियात यही है, एहतियात यही है कि उनका चमड़ा इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अंदर एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, कुत्ते और खिंजीर का चमड़ा तो हरगिज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप? कुछ उलमा ने कहा, जैसे मैंने कहा, एक मसला बयान किया कि उनके ताल्लुक से उलमा ने कहा है कि बाज़ उलमा ने कि प्रोसेस से ही इस्तेमाल करें तो वो साफ़ हो जा सकता है। जिनका हम गोश्त नहीं खाते, मिसाल तौर पर हाथी वगैरह, मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, वैसा होना नहीं चाहिए वो, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बस। तो उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब प्रॉपर प्रोसेस जो है वो हो जाए साफ़ करने के ताल्लुक से। ठीक है। अलबत्ता बाज़ एहतियात, उलमा ने कहा कि एहतियात यही है कि वो भी इस्तेमाल ना हो। तो जो उलमा कह रहे हैं कि प्रोसेस अगर फॉलो कर लें तो जायज़ है, वो उलमा भी ये कहते हैं कि खिंजीर और कुत्ते का जो चमड़ा है वो हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रॉपर तरीके से उसके चमड़े को आप अच्छी तरीके से साफ भी कर लें, सब कर लें, तमाम उलमा का गोया कि इस सिलसिले में इत्तेफाक है कि उनका चमड़ा जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो चमड़े जो इस्तेमाल में आते हैं, मुश्किलें भी बनते हैं उसके, पानी रखने के या दीगर चीज़ें रखने के, तो उन मसाइल को मैं दोबारा एक मरतबा दोहरा देता हूँ। वो जानवर जिन्हें हम खाते हैं, जिनका हम गोश्त खाते हैं, खाना हमारे लिए जायज़ है और वो प्रॉपर ज़बा हुए हैं, तो उनका चमड़ा बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए हमारे लिए जायज़ है। चाहे चमड़ा अभी साफ नहीं हुआ हो या हुआ हो, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जानवर जिनका गोश्त खाना हमारे लिए हलाल है, जायज़ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उन्हें ज़बा नहीं किया गया है, तो उसके ताल्लुक से कहा गया कि जब चमड़े को सही तरीके से आप साफ करेंगे,
पूरा अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे जो प्रोसेस है, उसके बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दरिंदों के चमड़े हैं उनका इस्तेमाल हरगिज हरगिज नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, ना लिबास के तौर पर, ना उनके ऊपर बैठा जाए, ना उन्हें जो है बिछोने के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। चौथी चीज, वो जानवर जिनका हम गोश्त नहीं खाते, जिनका गोश्त खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है, अगर उनका चमड़ा है तो उसका क्या हुक्म है? तो उसका हुक्म के ताल्लुक से उलमा के दो बातें, दो कौल हमने यहाँ पर जिक्र करें। एक तो ये है कि अगर प्रोसेस सही फॉलो किया जाए, उनके चमड़े को साफ किया जाए, तो उनका इस्तेमाल जायज़ होगा। हाँ, इसके अंदर कुत्ता और खंजीर नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन एहतियात का तकाजा ये है, जैसा कि इब्न उसैमीन है, शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह है, उन उलमा ने कहा है कि नहीं, इनसे भी बचना ज़रूरी है, और यही सही एहतियात है कि हम एहतियात बरतें। तो अब अगर हम वाकई मानों में ये चमड़े, मुख्तलिफ किस्म के जो है चमड़े आते हैं, और जो है उनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हाँ, चाहे वो पर्सेस हों, चाहे वो बैग्स हों, चाहे वो बेल्ट्स हों, चाहे वो जूते हों, या फिर जो है पर वॉलेट्स वगैरह हों। तो इस सिलसिले में कौन सा चमड़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा नहीं, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह जान लिया। अब एक आखिरी जो मसला है जो आज के दौर का है, वो ये है कि बाज़ वो चमड़े हैं जो कि मसनूई चमड़ा जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो मसनूई है, वो किसी जानवर का नहीं है, वो किसी जानवर का नहीं है, बल्कि मैन मेड चमड़ा है वो। हाँ, बहुत ऐसे पता नहीं किन चीज़ों से जो है उसे बनाते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन उन्हें बनाया जाता है, जिसे हम मसनूई चमड़ा कहते हैं। यानी वो दिखने में बिल्कुल आपको चमड़े की तरह दिखेगा, स्किन की तरह दिखेगा, लेकिन वो चमड़ा होता नहीं है, वो एक मानो में मसनूई है, वो एक मानो में मसनूई है। तो फिर ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो जिन चीजों से बना है वो अगर जायज चीजें हैं वो, तो बिल्कुल हम जो है उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक था, आज का जो चैप्टर था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ। हमने जो आज पढ़ा है उसमें सबसे पहले कल का एक मसला हमने बयान किया कि पानी अगर नजिस है और उसे प्यूरिफाई करने का प्रोसेस किया गया है, तो क्या उससे हम गुस्ल कर सकते हैं, वुदू कर सकते हैं? तो उलमा का फतवा यही है कि बिल्कुल उससे गुस्ल भी कर सकते हैं, वुदू भी कर सकते हैं, जब वो अपनी हकीकी क्वालिटी उसकी लौट आई है, और उसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, उसका कलर भी बदला हुआ नहीं है, उसका टेस्ट भी जो है प्रॉपर जैसे पहले था वैसे ही अगर है, तो आप उसे वजू के लिए, गुस्ल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के ताल्लुक से एहतियात बरतना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बर्तनों के ताल्लुक से हमने पढ़ा, तो असल हुक्म यही है कि बर्तन किसी भी किस्म के हों वो जायज़ है, मगर वो जायज़ नहीं जिनसे मना किया गया है किताब व सुन्नत के अंदर। तो उमूमी हुक्म, सारे बर्तन मिसाल प्लास्टिक है वगैरह वगैरह, इनका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है। हाँ, वो मना है जिनके ताल्लुक से मना कुरान और हदीस के अंदर आ गया है। चार मसले इसके तहत हमने पढ़ा। पहला मसला ये है कि सोने और चांदी के बर्तनों के ताल्लुक से, तो सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पीना ये मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। उसके लिए बता दिया गया कि ये गैर मुस्लिमीन के लिए दुनिया के अंदर है, और आखिरत में मुसलमानों के लिए होंगे, ठीक है, जन्नत के अंदर मुसलमानों के लिए होंगे। तो यहाँ पर खाने पीना उनका उसके अंदर जायज़ नहीं है। और बाद उलमा ने यहाँ तक कहा कि खाने पीने ही नहीं बल्कि दीगर इस्तेमालात भी जायज़ नहीं है। बाद लोग मालदार माशाल्लाह, उनके अलग अलग जो है ख्वाहिशात होते हैं कि उनकी कुर्सी भी गोया के सोने की हो, जो टेबल है वो भी सोने का हो, बल्कि बाज़ लोग अपना एक घर ही या रूम ही पूरा, उसकी हर हर चीज़ जो है गोया के सोने और चांदी के इस्तेमाल करते हुए जो है बनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और इसके अंदर ये मतलब बयान किया गया कि जो सोने और चांदी का पानी चढ़ाया हुआ जो रहता है, जो हकीकी सोना नहीं है वो, तो फिर उसका इस्तेमाल जो है जायज़ है, उसका इस्तेमाल जो है जायज़ है। इसी तरह अगर बर्तन टूट गया है और थोड़ा उसे जोड़ने के लिए चांदी की
चांदी की तार इस्तेमाल की गई है तो वो जायज़ है। अलबत्ता बर्तन हैं जो बिल्कुल एक मानो में आप कहिए कि स्टील का है या किसी और जो है धात का है, लेकिन उसके अंदर सोने की एक चीज़ है, चांदी की एक चीज़ है, और वो उस बर्तन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई है, लेकिन बस है, तो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्तन टूट गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बर्तन को चांदी के तार से गोया के जोड़ दिया गया था, और वो बहुत थोड़ा था। तो अगर इतना थोड़ा है, चांदी का तार लगा हुआ है किसी बर्तन में, इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। तीसरा मसला ये हमने पढ़ा कि जो गैर मुस्लिमीन के जो बर्तन हैं, गैर मुस्लिमों के जो बर्तन हैं, उनके इस्तेमाल के ताल्लुक से ये है कि अगर आपको मालूम है कि उसके अंदर जायज़ चीज़ें ही गोया के इस्तेमाल में आती हैं, तो बिल्कुल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर है कि इसके अंदर नजिस चीज़ भी थी होगी, जिसके हमने मिसाल दिया शराब, या इसी तरह गोश्त वगैरह जो कि गैर शरई तौर पर ज़बा हुआ है, ठीक है, तो फिर वहां पर आप उन बर्तनों को अच्छी तरीके से धोंगे, और उसके धोने के बाद ही आप जो है इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह चौथा मसला चमड़े के ताल्लुक से था, तो उसके अंदर अलग जो है चार अलग अलग किस्म के चमड़ों के ताल्लुक से हमने पढ़ा। पहला ये कि जिन जानवरों का गोश्त खाना हमारे लिए जायज़ है और जो सही तरीके से ज़बा भी हुए हैं, शरई तौर पर जो सही तरीके से ज़बा हुए हैं, तो उनका खाना हमारे लिए जायज़ है, और अफवन उनका इस्तेमाल हमारे लिए जायज़ है। चाहे वो चमड़ा साफ करने का प्रोसेस हुआ हो, नहीं हुआ हो, वो पहले से ही एक मानों में उनका इस्तेमाल जायज़ है। वो जानवर जिनका गोश्त खाना हमारे लिए हलाल है, लेकिन जो ज़बा हुआ है वो गैर शरई तौर पर हुआ है, झटके से ज़बा हुआ है, या फिर वो मुर्दा है, तो फिर उसका जो चमड़ा है, स्किन है, वो उसी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि अच्छी तरह उन्हें, हाँ, दबागत दी जाए। जो चमड़ा साफ करने का जो प्रोसेस है, अच्छी तरीके से अगर वो हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दरिंदों के चमड़े हैं वो इस्तेमाल हरगिज हरगिज नहीं करना चाहिए, तकब्बुर करने वाले ऐसा इस्तेमाल करते हैं। वो जानवर जिनका गोश्त खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है, उनका चमड़ा एहतियात ये है कि हम इस्तेमाल ना करें, दबागत देकर ही सही, इस्तेमाल ना करें, यही एहतियात है। बाज़ उलमा ने उसके लिए इजाज़त दी है कि अगर दबागत दे दे रहे हैं, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो जा रहा है, तो जायज़ है, सिवाय खिंजीर और कुत्ते और खिंजीर, हाँ, डॉग्स और इसी तरह जो है खिंजीर जो है, हाँ, पिग्स वगैरह, इनका चमड़ा हरगिज हरगिज किसी सूरत में भी किसी के लिए ये इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। और फिर जो मसनूई जो चमड़ा है, यानी वो लेदर जो मैन मेड जो लेदर होता है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हमें मालूम हो कि वो जायज़ चीज़ों से अगर बना हुआ है, तो बिल्कुल उनका इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ होगा, उनका इस्तेमाल करना मना नहीं है, ठीक है। इस सिलसिले में अगर आप लोगों के सवालात हैं तो आप लोग कर सकते हैं। चांदी की गिलास में पानी पी सकते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू? जी नहीं, चांदी के बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। जी, अच्छा, मसनूई जो चमड़ा है, मैन मेड जो बोला, उसको फॉक्स लेदर कहते हैं, तो जी हाँ, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि सही तौर पर अगर उसके अंदर जायज़ चीज़ें अगर हैं। ट्रीटमेंट के लिए सिल्वर का वरक यूज़ करना, सिल्वर का जो वरक है या पानी है, तो वो एक्चुअल सिल्वर नहीं है, वो असल में सिल्वर नहीं है, या वो असल में चांदी नहीं है, ठीक है, वो चांदी का पेपर कहते हैं बस, तो असल में वो चांदी नहीं है, तो उनका इस्तेमाल जायज़ है, जी हाँ। तो वो असल चांदी नहीं होती है वो, ठीक है। और एक सवाल कल हुआ था, जिसका जवाब हम आखिर में देने के लिए रखे थे, कि वज़ू टूट जाता है, ऐसा कुछ सवाल था वो, चूंकि क्लास से रिलेटेड नहीं था, तो मैंने ये सोचा था कि आखिर में उनका जवाब दिया जाए। तो अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। मुकम्मल सवाल जो है मुझे याद नहीं है, या नहीं तो बाद में आप सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तो इंशाल्लाह उसका जवाब हम जो है दे देंगे, ठीक है। इन क्लासेस के जो की पॉइंट्स होंगे, उनके नोट्स हम इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे तक देने की मुकम्मल जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.